The tissue culture, previously it was included in the part strategies for enhancement food production of botany part. The tissue culture is actually related with the application of biotechnology. What is the meaning of this tissue culture? I'm going to say micropropagation too. This is also known as micropropagation. Propagation का मतलब कुछ synthesize करना. You are propagating something, you are forming something, and micro means small part. When we are using a small part of any part of plant, that is known as explant. Suppose here I am taking leaf. This leaf का एक small part I am taking here on the Petri plate, and this plate is containing the culture media. What is the meaning of culture media? In a very simple way, listen to me very carefully. What is micropropagation and tissue culture? First of all, this is the technique. By using this technique, suppose I'm giving you one simple example that I'm having a medicinal plant which is very rare and I'm unable to get it from the anywhere in the मतलब तो अगर हम इन plants को देखें तो ये मुझे बहुत जगह से मतलब नहीं मिल पा रहा है, rare है, तो मैं इसके seeds या उसके parts vegetative propagation या किसी के लिए I'm not going to wait for them. तो मैंने क्या किया, उसका जो भी पार्ट मुझे मिला, मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट से मैं बहुत सारे प्लांट्स बना लूँ बिकॉज इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो मैं क्या करूँगी, आई विल टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट प्लांट दैट इज कंसीडर्ड एक्स प्लांट. एक्स प्लांट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस एक्स प्लांट, अगर इस एक्स प्लांट की चॉइस भी डिपेंड करती है. सपोज द प्लांट इज, in another example, the plant is infected from the virus, but we know that there are certain cells, there are certain part of the plants which are not immediately getting effect from those viruses. Yes, those are meristematic cells. So we can take meristematic cells as explant. अगर मुझे virus free plant बनाना है from the virus infected plant, then I'll take the as meristematic cells as the explant. हम embryo culture भी करते हैं, anther culture भी करते हैं because they are freshly growing cells, तो उन्हें लेते हैं. तो यहाँ पर फिलहाल I'm taking a part of leaf. You can see here scalpel से मैंने इसे cut किया, मैंने इसके छोटे-छोटे pieces किए and I'll having it on the culture media. What is the culture media? अगर मैं कोई नया प्लांट उगाती हूँ, नया प्लांट ग्रो करना चाहती हूँ, तो मैं उसके सीड्स को सॉइल में डालूंगी. द सॉइल शुड बी फर्टाइल. सॉइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो मेरे उस सीड को नर्चर करें. तो इसी तरह से उसी सेम कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए आई कीप दिस थिंग इन माई माइंड. आई प्रिपेयर अ कल्चर मीडिया जो इस छोटे से एक्स प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. तो यहाँ पर इसको देने के लिए आई विल प्रिपेयर अ कल्चर मीडिया. वी आर सेइंग दिस इज कंप्लीट कल्चर मीडिया इंक्लूडिंग सम ग्रोथ हार्मोन, carbon sources and etc. And these are containing in a Petri plate. मैंने यहाँ पर Petri plate ली है and as you know this is the X plant and I'll let it in a complete sterile condition. क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इस बात को याद रखना that when we are creating such kind of experiment, when we are experimenting this micropropagation procedure, then we have to do one thing कि हमें वो sterile ambience वहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह का contamination होगा it can harm the growth of the plant of course and may be कि आपका जो सैंपल है वो डिटीरियोरेट हो जाए. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू चूज दिस कल्चर मीडिया. आई विल ग्रो दिस एक्स प्लांट. दिस एक्स प्लांट विल ग्रो इन दैट कल्चर मीडिया बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू देम एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कैलस. एंड यहाँ पर अगर मैं आपको एडिशनल एक प्लेट दिखाऊं तो यहाँ पर आई विल से दिस इज कैलस. व्हाट इज कैलस? कैलस इज undifferentiated mass of cells. And for me, it is very easy to understand this thing that X plant, small cells, group of cells, and when these cells will get efficient amount of nutrient and all the conditions which are required, it of course they will grow and they will convert into a bigger group of cells. That's called callus. This callus is undifferentiated. Why I'm saying this is undifferentiated? Because it is undifferentiated. It is not differentiated among roots, stem, leaves. These kinds of parts are not visible in that. So that's why I'm saying undifferentiated mass of cell. That's called callus. अब इस callus को मैं specialized media दूंगी. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, because मुझे NCERT पर रहना है, मुझे उतनी बात तैयारी करनी है जितनी मुझे MBBS कॉलेज में एक अच्छा सा GMC दिलवा दे. तो यहाँ पर मुझे इतनी बात करनी है, तो मैं इस बात को थोड़ा सा लिमिट करते हुए आई एम नॉट गोइंग टू से यू व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन शुड बी देयर. नो, नॉट एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड एट दैट प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है सिर्फ अनडिफरेंशिएटेड. हमने उसको क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा और मीडिया उसका एनरिच किया, हमने उसका मीडिया चेंज किया एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट अ स्मॉल प्लांट. दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द प्लांट and this is called shoot of the plant.
ठीक है, यहाँ पर हम साइटोकाइनिन ऑक्सिन रिच मीडिया अगर देते हैं तो जैसे ऑक्सिन के लिए कहा जाता है ना कि वो रूट प्रोपेगेट करवाते हैं, साइटोकाइनिन शूट प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं, बल्कि उनका रेशियो थोड़ा सा फिक्स किया जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द स्मॉल प्लांटलेट, दिस इज द बेबी प्लांट, ऑफ कोर्स यू नो दैट. सो दिस स्मॉल प्लांटलेट, अब हम इस प्लांट के साथ थोड़ा सा हार्श होंगे. हम इसे उस एम्बियंस से जिसमें आपने बहुत स्टेराइल कंडीशन दी है, भाई इसे बाहर तो भेजना होगा ना, ठीक है, बच्चा यहाँ पे है, बच्चे को बाहर भी भेजना होगा, बाहर के एनवायरनमेंट से सिर्फ थोड़ा फैमिलियर करवाना होगा. सो कंपैरेटिवली वी आर बिकमिंग हार्श विद द प्लांट्स. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग. दिस हार्डनिंग, ड्यू टू दिस हार्डनिंग प्रोसेस, हम उसे पहले ग्रीन हाउस, मतलब हम इसे थोड़ा सा धीरे धीरे साइमल्टेनियसली हम इसे पहले रूम से बाहर शिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इसे बाहर शिफ्ट करेंगे, जिससे ये बाहर के एनवायरनमेंट में अल्टीमेटली इसे प्रोपेगेट तो बाहर ही करना है, तो ये वहाँ प्रोपेगेट हो सके.